Yeah, so we're going to be learning about the Holy Spirit. हम पवित्र आत्मा के बारे में सीखने जा रहे हैं We're going to be learning about the person of the Holy Spirit. और हम सीखेंगे जो पवित्र आत्मा एक है. Like all of us as believers, we would have heard about the Holy Spirit. आपने जब विश्वासी होने के नाते पवित्र आत्मा के बारे में जाना है. Yeah, in our praying, in our singing, in our worshiping. और हमारे प्रार्थना में आराधना के द्वारा. So we're going to look into the Word of God and see who is the Holy Spirit. और हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे, देखेंगे कि पवित्र आत्मा कौन है. And understand what He does in our और lives. हम समझेंगे कि पवित्र आत्मा हमारे जीवन में क्या करता है. So we're going to learn about the person of the Holy Spirit. और हम उस पवित्र आत्मा जो व्यक्तित्व है उसके बारे में देखेंगे. And we're also going to look at the work of the Holy Spirit in the Old Testament. और साथ साथ में देखने पाएंगे कि पुराने नियम में पवित्र आत्मा का कार्य. And then we're going to look at how the Holy Spirit worked in the New Testament. और उसके बाद देखेंगे कि पवित्र आत्मा नए नियम में किस प्रकार काम को किया है. In the life of the Lord Jesus. यीशु मसीह के जीवन में. In the book of Acts. और प्रेरितों काम की पुस्तक में. And we're going to go through also a section on the baptism of the Holy Spirit. और साथ साथ में हम पवित्र आत्मा के बपतिस्मा के बारे में देखेंगे. Right? What is the baptism of the Holy Spirit? और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा क्या है. Is it for all believers? ये सारे विश्वासियों के लिए है. Is it only for experienced believers? केवल जो अनुभव को पाए उन विश्वासियों के लिए. So we're going to be learning about that. और हम उन बातों को सीखने पाएंगे. And finally we'll also learn about the anointing, ministering in the power of the Holy Spirit. और आखिरी में हम पवित्र आत्मा की सामर्थ जो सेवा में हमें अभिषेक जरूरत है उस बात को भी. And after the following week we will also look or study about the gifts of the Holy Spirit. और इस अध्ययन के साथ साथ हम ये भी देखने पाएंगे पवित्र आत्मा के जो वरदान के बारे में. So this is a continuation of what we are learning और right now. हम जो कुछ सीखेंगे लगातार हम बातों को देखने पाएंगे. Okay, so before we start, I just want to ask us a question, like how many gods do we worship? How many gods do we worship? हम ये प्रारंभ करने के पहले इस बात को समझेंगे कि हम कितने परमेश्वर की आराधना करते हैं. One God, very sure. सही बात. Okay. सही है आप सब. But in the Bible we also read about God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. हम बाइबल में देखते हैं पवित्र परमेश्वर और पवित्र आत्मा और पुत्र प्रभु यीशु मसीह के बारे में. So these are three. ये तीन है. So how can we say that we worship one God? हम ये बात सत्य है कि हम कह रहे एक ही परमेश्वर की हम आराधना करते हैं. Are we not worshiping three gods? लेकिन हम तीन परमेश्वर की उपासना नहीं करते. Right? But he described himself as three persons, in three persons. Yes, correct. हम तीन व्यक्तित्व में सेम रूप को हम देखते हैं. Yeah. So even before we look into and study about the Holy Spirit, we're going to study a little bit about the Trinity. और हम जब इन विषय पर हम जब चर्चा करते हैं तो हम त्रिएक परमेश्वर के बारे में हम सीखने पाएंगे. So the Bible just talks about God. पर वचन परमेश्वर का वचन है ईश्वर के बारे में, परमेश्वर के बारे में बताता है. Just describes or talks about the Father, Son, and the Holy Spirit. और वो पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के बारे में समझाता है उसके अंदर. And it doesn't say that we worship three, but it says we worship one God. और वहां पर ये बात बताता नहीं है कि हम तीन ईश्वर की उपासना करते, परमेश्वर की उपासना करते, बल्कि वहां बताया गया एक परमेश्वर की आराधना करने के बारे में. Over and over again, the Bible declares that you should worship the Lord our God. The Lord our God is one. बार बार बताता है कि हम उस परमेश्वर की आराधना करते हैं जो वो परमेश्वर हमारे लिए एक है. But also very categorically, very boldly talks about the Father, the Son, and the Holy Spirit. और इसमें बड़े प्रभाव से इस बात को बताता है कि वो पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा है. So we understand that God is one. और हमें इस बात को समझना है कि परमेश्वर एक है. But he manifests himself in three persons. और वो तीन व्यक्तित्व को प्रकट करता है अपने आप में. Right. So 1 + 1 + 1. एक धन एक. In God's equation. परमेश्वर की सृष्टि में is one. वो एक है.
right? It's not three. वो तीन नहीं है। For example, our God is omnipresent. और Omnipresent. He's present वो everywhere, सब जगह, वो परमेश्वर सब जगह उपस्थित है। right? He's present everywhere. वो सब जगह हम देखते हैं इस परमेश्वर He's को। here with us, अभी हमारे साथ में है and he's also with every believer और वो all over the world. सारे संसार में प्रत्येक विश्वासियों के साथ रहता है। So does that make him 2 billion gods? क्या हम उसका मतलब क्या 2 मिलियन परमेश्वर करके साबित करेंगे के रूप में? He's one God, वो एक ही परमेश्वर है। but he's with every believer. His indwelling presence is with every believer in वो the world, हम देखते हैं कि पूरे संसार में प्रत्येक विश्वासियों के साथ वो रहता है right? So he's an omnipresent God. और वो सब जगह एक जगह उपस्थित रहता है। And sometimes we find it difficult to understand omnipresence. कई बार हमें समझने में बहुत दिक्कत होती है कि वो परमेश्वर सब जगह उपस्थित रहता करके, Because each one of us, we can be only in one place at one time. हम एक समय में एक जगह हम सब उपस्थित रहते हैं। Either you're in Bangalore, अगर हम बेंगलोर में हैं तो, or you're in Mumbai, or you're in Mumbai. और मुंबई में, You can't be in two places. आप एक साथ दो जगह में नहीं रह पाओगे। Yes or no? सही बात है। Yes. So we find it challenging to understand how can God be in all these places. अब ये हमारे लिए चुनौती की बात है कि परमेश्वर एक साथ दो जगह कैसे रहेगा। And similarly, we find it challenging to wrap our minds or to understand this whole concept of Trinity. और ये बड़ा समझना हमारे लिए कठिन हो जाता है ये त्रिएक परमेश्वर के बारे में जानने के लिए। But it's very important that we understand or we take an uncompromised stand about God being Trinity. और हम इस बात को बिना समझौते के उस स्थान में हमें खड़ा होना है, वो त्रिएक परमेश्वर के बारे में समझने के Right? लिए। So the Bible has a lot of pictures or information about God, the Father, Son, and the Holy Spirit. और परमेश्वर बहुत से उस दृश्य को और अपने आप को प्रकट करता है पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के बारे में वचन के अंदर। And so in this introductory class, we're going to look at where are all these places where the Trinity is not mentioned as Trinity, but we see God the Father, Son, and the Holy Spirit. और ये कई जगह हम देख पाते हैं कि इस चीज का प्रमाण उस स्थान में नहीं है, लेकिन बाइबल प्रमाणित करती है कि त्रिएक परमेश्वर जो वचन में कहाँ पाए जाते हैं। Yeah. So let's look at Genesis chapter 1. आइए हम देखेंगे उत्पत्ति की पुस्तक उसका पहला अध्याय। So in creation, Genesis chapter 1 verses 2 and 3. और हम उत्पत्ति एक अध्याय उसका 2 और 3 में हम पढ़ते हैं उस सृष्टि के बारे में। Can somebody read? कोई एक जन पढ़े। Okay. So it says that the earth was without form and the Spirit of God was hovering over the face of the waters. हम देखते हैं कि परमेश्वर ने जब सृष्टि को बनाया, पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर आत्मा मंडराता था। Right. So right in the beginning, the Bible talks about the Holy Spirit. और शुरुआत से यहाँ पर हम देखते हैं पवित्र आत्मा के बारे में बताया गया है। And right at the beginning, it also talks about God is as the one who is declaring or commanding creation. और हम शुरुआती उस अध्याय में हम देखते पढ़ते हैं कि वह परमेश्वर के बारे में बताया गया कि जो कि उस पृथ्वी के ऊपर सृष्टि के ऊपर अधिकार को जमाते हुए। So in these two verses, we see God the Father, और इस वचन में हम देख सकते हैं वो परमेश्वर है, and we also see the Holy Spirit being mentioned here. और यहाँ पर पवित्र आत्मा के बारे में दर्शाया गया है। Okay, now let's look at Colossians 1 and verse 16. और हम देखेंगे कोलोसी की पत्री। Okay, so Colossians in New Testament, नए नियम में कोलोसी की पत्री Colossians chapter 1 and verse 16. पहला अध्याय उसका 16 पद। क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुओं
वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सर्जी गई है। Okay. So it says that verse 16 says, by him all things were created that are in heaven and that are on earth. अब देखते यहाँ पर हमने पढ़ा कि जो कुछ सारे वस्तुएं उसी के द्वारा जो सृष्टि गई है, जो स्वर्ग और पृथ्वी पर है। So who is this referring to? और ये कौन इस बात को बता रहा है? Okay. It's, if you look at verse 15, verse 15, the verse 15 before, 15 पद में हम देखते हैं, it says that he is the image of the invisible God. और देखते हैं कि वो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप। So who is this? Who is the image of the invisible God? कौन अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप है? Yeah? Anyone? You just put your hand up. आप अपने हाथ उठाकर बता If सकते you हैं। know the answer, put your hand up. Okay. Jesus. Okay. Prabhu Yesu Masih. So how do we know that he's talking about Jesus? तो कैसे हम जान पाएंगे कि यहाँ पर यीशु मसीह के बारे में बताया जा रहा है? Right? If you read the verses before that, उसके पहले वाले पद को पढ़ेंगे for example, if you look at verse 10, और वचन 10 को देखेंगे, it says that you may walk worthy of the Lord, ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो fully pleasing him, और वह सब प्रकार से प्रसन्न हो, being fruitful in every good work. और तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे। Right? And verse 12 says, giving thanks to the Father. और 12 पद में लिखा है, पिता को और पिता का धन्यवाद करते रहो। And verse 14 says, in him we have redemption. और 14 पद में लिखा है, जिससे हमें छुटकारा पापों की क्षमा मिली है, Through his blood, उसके लहू के द्वारा the forgiveness of sins. हमारे पापों की क्षमा। Right? So who shed his blood for us? लहू किसने बहाया हमारे लिए? Who छुटकारा के forgave लिए? our sins? हमारे पापों को किसने क्षमा किया? The Lord Jesus. Right? It's very clear. ये So, बहुत ही स्पष्ट है यहाँ so पर। verse 16 says, by him all things were created. और हम 16 पद में देखते हैं, पढ़ते हैं, उसी में सारी वस्तु की सृष्टि हुई। Which means that and in creation or at the time of creation, we see the Father, we hear about the Son, and we also see the Holy Spirit. और सृष्टि के समय हम देखते हैं वहां पर पिता परमेश्वर, पुत्र प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा को देखने पाते हैं। Right? So the word Trinity may not be mentioned there in the और English Bible, बाइबल में त्रिएक परमेश्वर के बारे में ऐसा वो शब्द को दर्शाया तो नहीं गया है, but we see the Father, Son, and the Holy Spirit लेकिन हम पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा को वहां देख सकते हैं। right at the very beginning. और सृष्टि के उस समय Right? So the Bible doesn't give any explanation. बाइबल उसके बारे में कोई ज्यादा विस्तार से नहीं It बताती। says in the beginning, वो शुरुआत में सृष्टि God. में परमेश्वर था, God created. परमेश्वर ने सृष्टि किया, The Holy Spirit was there, पवित्र आत्मा वहां था and God spoke, और परमेश्वर ने कहा and things came into being. और वो हो गया। And then we read in Colossians और हम that, जब कुलिस्सी की पत्री में पढ़ते हैं, that by him or by Jesus, all things that were created. उसके द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा सब कुछ बनाया गया। Right? So we see in creation, there is Trinity. और हम उस सृष्टि के समय त्रिएक परमेश्वर को हम देख सकते हैं। When we come to the New Testament, जब हम नए नियम में आते हैं when there was news about the birth of Jesus, और वहां पर यीशु मसीह के जन्म के बारे में हम सुनते हैं, right? We see in the gospel, हम सुसमाचार में पाते हैं, the gospel of Luke, लूका के सुसमाचार में, the angel comes and announces the birth of the Lord Jesus, how और he will be born. वहां पर देखते हैं स्वर्गदूत आकर घोषणा करते हैं यीशु मसीह के जन्म के बारे में। Okay, we read in Luke chapter 1 हम लूका के सुसमाचार उसका 1 अध्याय and verse 32 onwards. उसका 32 से हम कुछ पदों को पढ़ेंगे। Okay, so Luke chapter 1 verse 32. लूका के सुसमाचार उसका 1 अध्याय 32 पद। And this is the angel of the Lord speaking. और यहाँ पर स्वर्गदूत बातें कर, परमेश्वर का स्वर्गदूत बातें कर रहा है। Okay, can somebody read verses 32 and 33 please? 32 वह और महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा और उसके राज्य का अंत ना होगा। Okay, so who will be great? Who will be called the Son of the Highest? वहां पर क्या बताया गया है? Who will be great? Verse वहां कौन 32. महान होगा? And who will be called the Son of the Highest? कौन वो पर वहां पर लिखा है कि महान कौन होगा? परम प्रधान का पुत्र कौन कहलाएगा? Right? Obviously, it's talking about the Lord Jesus. और वहां पर हम देखते हैं यीशु मसीह के बारे में बताया जा रहा है। And in verse 35, 35 पद में
when Mary asks, how can this be? In verse 35, और कैसा ये होगा करके उसके 35वें वचन में दिया गया है। the angel answers स्वर्गदूत ने उत्तर दिया and says, this is how this miraculous birth will happen. और ये कैसे ये आश्चर्य कर्म होगा करके बताया। He says, the Holy Spirit will come upon you, पवित्र आत्मा तुम पर आएगा and the power of the highest will overshadow you, परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी and that Holy One who is to be born will be called the Son of God. और इसलिए वो पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है वो परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। So we see three things here. यहाँ पर तीन बातों को देखते हैं। It says, the Holy Spirit will come upon you. पवित्र आत्मा तुम पर आएगा And he says, the power of the highest will overshadow you. और देखते हैं कि परम प्रधान की छाया तुम पर, परम प्रधान की सामर्थ की छाया तुम पर होगी। And then he says, the Holy One who is to be born will be called the Son of God. जो पवित्र जो उत्पन्न होगा वो है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। Right? So he talks about the Father, Son, and the Holy Spirit. और यहाँ देखते हैं पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के बारे में बातचीत कर रहा है। Right? So the Bible is not explaining how three are one, but the Bible just goes on to proclaim that this is how it will be. बाइबल त्रिएकता के बारे में नहीं बता रहा है, लेकिन हम वचन के द्वारा उन बातों को देख सकते किस प्रकार वो घोषणा की जा रही है। So there should be no confusion in our minds. हमारे मन में किसी प्रकार का संदेह या शंका नहीं होना चाहिए। God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. वो परमेश्वर जो पिता पुत्र पवित्र आत्मा They are three in one, ये तीनों एक है। and God is one. परमेश्वर एक है। But we see all these pictures of the Trinity in Scripture. और हम ये त्रिएकता के बारे में उस दृश्य को इस बाइबल के अंदर अब देखने पाते हैं। Yeah, one other very interesting verse is in Matthew chapter 3. और बहुत ही हम एक ऐसे अद्भुत वचन को देखते हैं जो मत्ती रचित सुसमाचार 3 अध्याय 16 पद में। Okay, so in Matthew chapter 3, the Lord Jesus is just walking down, and he's coming to John the Baptist. और हम देखते हैं कि यीशु मसीह जब उस वहां से उतरकर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पास आता है। So John the Baptist is introducing Jesus to और everyone, यूहन्ना बपतिस्मा देता यीशु मसीह के बारे में परिचय दे रहा है। and the Lord Jesus says, you baptize me now. और यीशु मसीह यूहन्ना से कहता है कि तुम मुझे बपतिस्मा देना है। And then we know that conversation they have. John the Baptist says, no, you should baptize me. How can I be baptized? How can I baptize you? वहां पर हम वार्तालाप को देखते हैं कि वो कह रहा है कि नहीं आपके द्वारा मुझे बपतिस्मा देना है। ऐसे आपस में वार्तालाप को हम देख नहीं पाते हैं। So anyway, John the Baptist baptizes Jesus. लेकिन कुछ यहाँ पर हम देखते हैं कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने यीशु का बपतिस्मा And the Lord Jesus comes out of the water. और जब यीशु मसीह बपतिस्मा लेकर पानी से बाहर आया, So something happens there और वहां पर कुछ हुआ, कुछ घटना घटित हुई that talks about the Trinity. और वहां पर त्रिएकता के बारे बता रहा है। Let's look at that verse 16 and 17. उस 16-17 वचन को हम देखने पाएंगे। Okay. In verse 16, maybe someone can read verses 16 and 17. कोई एक जन पढ़े 16-17 पद को। और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया, और देखो उसके लिए आकाश खुल गया, और उसने परमेश्वर के आत्मा को कबूतर के समान उतरते और अपने ऊपर आते देखा, और देखो यह आकाशवाणी हुई, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। आमीन। Okay. So something wonderful we see here in these verses. हम इस वचन के द्वारा कुछ आश्चर्यचकित करने वाली बातों को हम देखते हैं। The Lord Jesus comes out और of the जैसे water. यीशु मसीह पानी से जब बाहर आता है, The heavens were opened. स्वर्ग उसके लिए खुल जाता है, And the Bible says that the Holy Spirit descended upon him like a dove. और पवित्र आत्मा उसके ऊपर कबूतर के समान उतरता है। But that's not all. Something else happened. लेकिन वही बात पूरी नहीं होती है, लेकिन और भी कुछ हो रहा है वहां पर। There was a voice from heaven, लेकिन वहां पर एक आवाज स्वर्ग से होती है, right? Unmistakable voice. और एक अद्भुत आकाशवाणी होती है वहां पर। And what did the voice say, or what did the voice mention? और वो जो आवाज जो होती है किस बात को दर्शा रहा है? The voice said, "This is my beloved son." और वो आकाश से जो शब्द होती है, और वो शब्द इस प्रकार होता है, ये मेरा प्रिय पुत्र है। So this means that God the Father is calling Jesus his beloved son, and he's saying, "This is my beloved son." जिस पिता स्वर्ग से वो कह रहा है
कि ये जो पुत्र है, ये जो यीशु है, ये मेरा पुत्र है And he's saying, I'm well pleased. और मैं इससे प्रसन्न हूँ। Right? So we hear the voice of God the Father. जब परमेश्वर की आप पिता की आवाज को सुनते हैं, We see God the Son, the Lord Jesus, coming out of the water. और हम देखते हैं वो यीशु मसीह वो पानी से जब बाहर निकलते हैं, And we also see the Holy Spirit descending upon Jesus like a dove. और देखते हैं कि पवित्र आत्मा उसके ऊपर, यीशु मसीह के ऊपर उतरते हुए। So we see all three. यहाँ पर देखते तीनों एक है। So there's no question, there's no doubt about the Father, Son, and the Holy Spirit. हमें किसी प्रकार से शंका को उत्पन्न नहीं करना है पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के बारे में। The reason we are going into details and being sure of the Father, Son, and the Holy Spirit is this. और हम इसमें इस पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के हम गहन अध्ययन को हम देखने पाएंगे। Because the minute we cut out one of them, we are in error. अगर इसमें तीनों में से किसी को हम अलग कर दे तो हम हमारे अंदर कमियों को हम देखने पाएंगे। Right? We get into error, we get into heresy. और वहां पर देखते हैं कि जो अगर रुकावट को देखने पाएंगे। And so we need to avoid that. हमें उन बातों को हमें हटाना है। And we need to be clear in our minds. We need to know the word of God. हमें परमेश्वर के वचन को जानना है, समझना है और हमारे मन के विचारों को हमें स्पष्ट करना है। Okay? Let's look at a few more verses. हम कुछ और वचनों को देखने पाएंगे। Okay, how many of you have been baptized in water? कितने लोग पानी में बपतिस्मा को लिए हैं? Okay. So normally when people baptize you, thank you, put your hands down please. When people baptize you, when somebody baptizes you, आपको किसी ने बपतिस्मा दिया, they say some things. आपसे कुछ कहा होगा They उन्होंने, declare something, उन्होंने कुछ घोषणा की, and that is based on Matthew chapter 28 and verse 19. और जो आधार है मत्ती सुसमाचार 28 अध्याय और 19 पद के अनुसार। This is the instruction given by the Lord Jesus. और ये यीशु मसीह के द्वारा एक निर्देश दिया गया है। And we call this as the Great Commission. और इसको कहते हैं जो महान आदेश के बारे में। Right. So he says, go and make disciples of all nations. और वहां पर कहा गया है कि जाओ तुम सारे जातियों को चेला बनाओ। Okay. And he says, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। Right? In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से। So we understand something here. यहाँ पर कुछ बात हम समझ सकते हैं। The Lord Jesus is giving a very important message. और यहाँ पर प्रभु परमेश्वर यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश को हमारे लिए दे रहा है। A very important instruction. और बहुत ही महत्वपूर्ण निर्देश को। And what is that instruction? वो निर्देश क्या है? To go make disciples. जाओ चेला बनाओ। Which means to go share the good news. इसका मतलब है कि हमें शुभ संदेश सुनाना है। And those who believe will be discipled in the ways of the Lord. और जो कोई विश्वास करेंगे वो यीशु के चेले के रूप में ठहराए जाएंगे। But he also says you baptize them. लेकिन परमेश्वर का वचन इस प्रकार बताता है कि उन्हें बपतिस्मा दो। And you baptize them जब बपतिस्मा देंगे, not in your own name, वो तुम्हारे नाम से नहीं, but in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. लेकिन किस नाम से? वो है पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से। Right? So by the authority of the Father, Son, and the Holy Spirit. और उस अधिकार से जो पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के। And you do that, you baptize them. आप उन्हें बपतिस्मा देना है। So we see the Trinity mentioned by the Lord Jesus in the instruction that he gave his disciples. प्रभु यीशु मसीह के द्वारा त्रिएक तत्व के बारे में वहां पर जो निर्देश के द्वारा हम देखते हैं बताता है। So he did not leave out the Holy Spirit. और वो पवित्र आत्मा को नहीं छोड़ रहा है। He did not leave out the Father. वो पिता को भी नहीं छोड़ रहा है वहां पर। He was very clear in his mind. और अपने मन में वो स्पष्ट है। Because he came from the Father. क्योंकि वो पिता के द्वारा आया। And everything that he did by the power of the Holy Spirit. और जो कुछ उसने किया वो पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में होकर किया। And therefore he says, baptize them in the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. इसलिए वो कहता है पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। Okay, everybody understood? सबको समझ में आ गया? So suppose I ask you, अगर मैं आपसे पूछूंगा तो is Trinity biblical?
वचन के आधार पर त्रिएकता के बारे में बताइए, What will your answer be? आपके उत्तर क्या रहेगा? Yes? Some people are not very sure. कई लोग बिल्कुल उन बातों में सही अपने आप को महसूस नहीं कर रहे होंगे। You'll say yes? अगर हाँ कहे तो हाँ। Okay. So suppose I ask you after that, उसके बाद मैं पूछता हूं तो आपसे, why are you saying yes? आप क्यों हाँ करके उत्तर दिए? How can you be so sure? How can you be so sure? आप किस प्रकार अपने आप को कह सकते हैं ये सही है करके? What will you tell? Okay, you will say it's in the Bible. हाँ, आप कहेंगे कि हाँ ये वचन में दिया है, बाइबल में बताया गया है। Okay, very good answer. बहुत अच्छा उत्तर। Suppose I ask you, show me in the Bible, where is it? तो आपसे अगर मैं पूछता हूं, अगला प्रश्न है कि मुझे बाइबल से बताइए कहाँ है? Yeah. All that we are studying now. हाँ, अभी हमने जो कुछ देखा वो हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर। So all I am saying is, don't read it and forget it. मैं कहना चाहता हूं कि आप केवल पढ़ना है, उसको भूलना नहीं है। Right? This is very important truth. ये बहुत ही महत्वपूर्ण सत्य है हमारे लिए, And it needs to be part of us. It needs to remain with us. और जो कि ये हमारे भाग है, जो हमारे साथ में रहता है। Okay, let's look at a few more verses. और भी हम कुछ वचनों को देखेंगे। When we are reading about the resurrection of the Lord, I'm just skipping a few things. When we read about the resurrection of the Lord, देखेंगे हम यीशु के पुनरुत्थान के बारे में। okay, Romans chapter 6. रोमी की पत्री 6 अध्याय उसका 4 पद। Chapter 6 and verse 4. 4 अध्याय 6 अध्याय उसका 4 पद। It says, we were buried with him through baptism into death. और लिखा है हम उसके साथ मसीह में गाड़े गए करके लिखा है, बपतिस्मा के द्वारा। And as Christ was raised from the dead, we should also walk in जिस newness of प्रकार life. मसीह यीशु मुर्दों में जी उठा, उसी प्रकार। Yeah. And when we read chapter 8 and verse 11, रोमियो की पत्री उसका 8 अध्याय उसका 11 पद। it says, if the spirit of him who raised Jesus from the dead dwells in you, he who raised Christ from the dead will also give life to your mortal bodies through his spirit who dwells in you. जिस प्रकार पिता ने प्रभु यीशु मसीह को मुर्दों में से जी उठाया, उसी प्रकार परमेश्वर हमें, जिस मसीह को मरे में से जी उठाया, उसी प्रकार परमेश्वर हमें भी उस बपतिस्मा के द्वारा इस बात को कहता है, हमें भी जी उठाएगा। It's talking about the resurrection of the Lord. और यहाँ पर यीशु के प्रभु के पुनरुत्थान के बारे में बताया And गया it's है। saying that it's the Holy Spirit, by the power of the Holy Spirit, the Lord Jesus was raised up. यीशु मसीह पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा जिलाया गया। But it's also talking about the Father. और यहाँ पर इस बात को भी बता रहा है पिता के बारे में। Where do we see that? कहाँ हम देख सकते हैं? Where do we see the Father being mentioned? और कहाँ पर देख सकते हैं कि वो पिता उस बात को बता रहा है? In Romans chapter 8 and verse 11. रोमी की पत्री उसका 8 अध्याय 11 पद में वो पिता स्वयं बता रहा है इस बात को। Can anyone कई जन पढ़ tell सकते me? हैं? यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने Yeah. So in that verse, you tell me, where is the Father mentioned? कहाँ पर बताया पिता? पिता कहाँ पर कह रहा है? Right. So it says the spirit of him. यदि उसी का आत्मा, Whose spirit? किसका आत्मा? Is referring to the Father. वो पिता के बारे में बता रहा है। Right. And he's saying, is referring to the Father. So it's the Father, the Son, and the Holy Spirit are mentioned here. और वहां पर देखते हैं पिता, पवित्र आत्मा और प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया है। Okay, let's move on. आगे बढ़ेंगे। And we read about this disciple called Stephen. और हम देखते हैं स्तिफनुस के बारे में। Now, Stephen was a young man, स्तिफनुस एक जवान लड़का था, and the disciples actually chose 7, and of whom one was Stephen. और 7 में से एक जो व्यक्ति है स्तिफनुस को चुना गया चेलों ने। Okay. So when we read the book of Acts, we read about Stephen. और वहां पर प्रेरितों काम की जब पुस्तक पढ़ते हैं, वहां पर स्तिफनुस के बारे में हम देखते हैं। Right? He was a good man. वो एक अच्छा व्यक्ति था, He was a committed person, और वो समर्पित व्यक्ति था, and the Lord used him mightily. और परमेश्वर ने बड़े सामर्थ के साथ उसे इस्तेमाल किया। So he would share the gospel. वो सुसमाचार को सुनाता था, He ministered in signs and wonders. और उसके द्वारा अद्भुत और चिन्ह चमत्कार होते थे, So the Lord used him. और परमेश्वर ने उसको इस्तेमाल किया। Now what happened was that Stephen got arrested. He was persecuted for his faith. अभी हम देखते हैं उसके विश्वास के कारण वो स्तिफनुस सताया गया और पकड़वाया ले गया, And he was brought before the religious leaders of और those days. वहां पर देखते हैं उस स्तिफनुस को
जो समाज के अधिकारियों के जो अधिकारियों के पास सामने लेके आए। And Stephen says this. स्तिफनुस कहता है, He shares a message to the और people. वहां पर लोगों को एक समूह एक संदेश को देता है, And towards the end of it, this is what he says. और अंत में उस प्रकार वो कहता है। Okay? Acts chapter 7, verses 55 and 56. प्रेरितों काम की पुस्तक 7 अध्याय उसका 55 और 56 पद। It says here that he was full of the Holy Spirit. और वहां पर इस प्रकार बताया वो पवित्र आत्मा से भरा हुआ था। Right? Do you see that? Verse 55, does it mention there? वहां देखिए, पढ़िए Yeah. क्या लिखा है वहां पर, Right? It पवित्र says, आत्मा से परिपूर्ण होकर। it says that he was full of the Holy Spirit. और देखते हैं वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था, भरा हुआ था, He was looking into heaven. और वो स्वर्ग की ओर देखा। And what did he see? और उसने क्या देखा? He saw the glory of God. उसने Says, परमेश्वर की महिमा को देखा। right? That is what it says. He वहां saw उस the प्रकार glory of बताया God. गया है। या। Okay? And what else did he see? और वो क्या देखता है? Yeah, he saw the Son. He saw the Lord Jesus standing at the right hand of God. और देखते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर की दाहिनी ओर खड़ा है। And he said, look, I see the heavens open. और देखो कि वो स्वर्ग खुला हुआ है, And the Son of Man is standing at the right hand. मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर की दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखता हूँ। He's standing at the right hand of God. दाहिनी ओर खड़े हुए। Right? But he was full of the Holy Spirit. और वो पूर्ण पवित्र आत्मा से भरा हुआ था। The Bible mentions that. बाइबल इस बात को बता रही है। And so we see the Father, Son, and the Holy Spirit mentioned even when Stephen, just before he was killed, just before he was martyred. देखो यहाँ पर स्तिफनुस जहाँ पर शहीद होने के पहले उसने त्रिएक परमेश्वर को वहां पर देखा, पिता पुत्र पवित्र आत्मा का दर्शन उसने किया। Right? Okay. One more in the book of Revelation. एक और हम देखेंगे प्रकाशित वाक्य में से, Revelation chapter 5 and verses 6 and 7. प्रकाशित वाक्य 5 अध्याय उसका 6 और 7 पद। It's describing a scene in the throne room. और वहां पर हम देखते हैं कि उस सिंहासन के भवन में, It talks about the Lamb of God which was there. और वहां पर परमेश्वर के मेमने को बताया दर्शाया गया है। And it talks about the Spirit of God, the और 7 वहाँ- spirits of God. और वहां पर 7 आत्माओं के बारे में बताया गया है। Now, we should not get confused that there are 7 spirits, but these are 7 characteristics of the Spirit of God. वहां पर 7 आत्माओं के बारे में शंका नहीं होना हमें, वहां पर 7 आत्माओं के कार्यों के बारे में। And we are going to learn about that और- in the book of Isaiah. हम यशायाह की पुस्तक से हम उसको सीखने पाएंगे। Okay, so we read about the Spirit of God being mentioned, we read about the Lamb of God who is there, and we also read about the right up of him who sat on the throne. अब देखते हैं कि वहां पर हमने उस मेमने के बारे में देखते हैं, और वो परमेश्वर के सिंहासन के वहां खड़ा होकर के उन बातों को भी हम समझ पाते हैं इसके अंदर। So similarly, like this, there are many other verses which talk about the Father, Son, and the Holy Spirit. इसी प्रकार कई बाइबल के अध्याय वचनों में, जो पुस्तकों में दिया गया है कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा के बारे में। So there should be no doubts in our minds हमारे मन में किसी प्रकार का शंका नहीं होना चाहिए। that God exists as the Father, Son, and the Holy और Spirit. परमेश्वर स्वयं खुद वो अपने आप को पिता पुत्र पवित्र आत्मा के रूप में प्रकट कर रहा है। And we're going to read a lot more about this in doctrinal foundations. अगर हम सैद्धांतिक इस वचनों में हम जब बाइबल में जब पढ़ते हैं, सैद्धांतिक तौर से हम उन बातों को देखने पाते हैं। That will come much later in the course, और वो हमारे कोर्स के पढ़ाई के कुछ समय में हम देखने पाएंगे। right? But we need to understand this about the Trinity, लेकिन हमें इस बात को समझना है त्रिएक परमेश्वर के बारे में, right? Because we are learning about the Holy Spirit, who is the third person of the Trinity. क्योंकि त्रिएक में तीसरा जो व्यक्ति है वो पवित्र आत्मा के बारे में। Okay. Any questions here? आपके मन में कोई प्रश्न है? कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। Okay. Yeah. Online class. You have a question? Okay. स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया। Yeah. Yeah. The angel of the Lord responded and gave the answer. Yeah. बोलिए।
Sir, Ah. who is the angel and who is that? Yeah. So the angel is the messenger from God. स्वर्गदूत परमेश्वर का जो संदेशवाहक था. The angel is not God. स्वर्गदूत परमेश्वर नहीं है, It's an angel of the Lord. क्योंकि वो परमेश्वर का संदेशवाहक है. Right? So suppose I send you to give a message to the principal. अगर मान लीजिए मुझे कुछ संदेश प्रधान अध्यापक तक पहुंचाना है, So you're the angel who's तो going and आपको मैं presenting a भेजूंगा, message. तो आप एक स्वर्गदूत का काम करेंगे, मेरा संदेश वाहक के रूप में काम करेंगे आप. So that is what the angel is here. वो है स्वर्गदूत. But the Holy Spirit is God. पवित्र आत्मा स्वयं परमेश्वर है. Okay, so we should be very clear. स्पष्ट है. Online students, if you have any questions, you can put it on the chat. ऑनलाइन में अगर किसी को प्रश्न है, आप मैसेज में डाल सकते हैं, दे सकते हैं. Okay, if there are no questions, we'll move on, right? अगर कोई प्रश्न नहीं है तो हम आगे बढ़ेंगे. Okay, let's look at chapter 2, which is, we're talking about the person of the Holy Spirit. अब दूसरा अध्याय को देखेंगे, आत्मा का व्यक्तित्व के बारे में हम देखेंगे. Right, we need to understand that Holy Spirit is God. एक बात समझना है कि पवित्र आत्मा परमेश्वर है. Right? He's fully God. वो पूर्ण परमेश्वर है. He's not 1/3 God. वो एक तिहाई भाग नहीं है. Right? Sometimes we think, no, 1/3 Father, 1/3 Son, 1/3 Holy Spirit. हम सोचते हैं एक भाग परमेश्वर है, दूसरा भाग पुत्र है, तीसरा भाग पवित्र आत्मा करके. Right? So he's fully God. वो पूर्ण परमेश्वर है. So what are some attributes of God or characteristics of God? हम परमेश्वर के कुछ गुणों, परमेश्वर के गुण क्या है, Right? उसको हम देखने पाते हैं. Some of the things that we see are that he is powerful. वो सामर्थी है. He is present everywhere. वो सब जगह रहता है. He knows everything. वो सब कुछ जानता है. Right? There's nothing that he does not know. और उसको ये जो कुछ करता है, उसको ये नहीं सोचे कि वो कुछ जानता ही नहीं है. वो जानता है, सब कुछ जानता है. Right. So these are some qualities of God. और ये परमेश्वर के कुछ गुण हैं. Let's look at some verses which talk about this. इन बातों को हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे जो बताती है. Okay. Psalm 139, भजन संहिता 139 verse 7. उसका 7 Okay, Psalm 139 and verse 7 says this. इस प्रकार बताती है, Where can I go from your spirit? Where can I flee from your presence? मैं तेरी आत्मा से भागकर किधर जाऊं या तेरे सामने से किधर भागूं. Which means he's present everywhere. इसका मतलब है सब जगह उपस्थित है. Right? So like we were talking earlier, he's present everywhere at all times. और वो सब जगह उपस्थित रहता है हर समय. Right? So that's an awesome God we are talking about. हम बड़े उस अद्भुत उस परमेश्वर के बारे में बात कर रहे हैं. So it's very reassuring. When it's very reassuring when we know that God is omnipresent. और हम अपने आप में इतना काबिलियत को प्रकट करना कि परमेश्वर साथ में रहता है और सब जगह रहता है. And I also want to say that he's fully present और वो with us. हमारे अंदर पूर्ण रीति से वास करता है. Right? Which means that he can take care of our problems. हमारी समस्याओं का देखरेख करता है. But he can also do that for others who are not here. और यहाँ पर जो लोग नहीं है उनकी भी देखभाल करता है. पर Maybe we have some loved ones, हो सकता है हम जिनसे प्यार करते हैं, right? Members of our family हमारे परिवार के सदस्यों के साथ, who are in great need, और जो उनकी जो जरूरत है, who are going through some difficult times. हो सकता है वो चुनौतियों के सामने, परिस्थितियों का सामना कर रहे हो. But God is present. परमेश्वर उनके साथ वहां है. He's omnipresent. वो सर्व जगह रहने वाला Right? परमेश्वर So है. that's what the psalmist says, where can I go from your presence? Where can I run away? इसलिए भजनकार कहता, मैं तेरी आत्मा से भागकर किधर जाऊं. Sometimes they say, in the government office, they said, they got me transferred to a God-forsaken place. और कई जैसे They say, like, I was transferred to some God-forsaken place. God is. कई बार हम कहते हैं परमेश्वर के कारण चलो मेरा स्थानांतरण हो गया या जगह बदलाव हो गया करके. Right? I don't know how it sounds in Hindi, but this is which means that, hey, this place, even God is forsaken. कई बार परमेश्वर हमें उन बातों के लिए छोड़ देता है.
No, that place, that जिस जगह town or city. या शहर जहाँ से जिस जगह काम करते हैं वहां से स्थानांतरण कर देता है, And the, बदलाव करता and है। the government has transferred me there, और परमेश्वर है और कहता है कि परमेश्वर ने मुझे वहां पर स्थानांतरित किया गया। right? So people think about that. People say that परमेश्वर उसके बारे में कहता है कि ये परमेश्वर क्या योजना है, this is a God-forsaken place. ये परमेश्वर के द्वारा ये हो सकता है यहाँ पर लेके आए परमेश्वर But ने, actually, there is no God-forsaken place, लेकिन परमेश्वर वहां पर हमें वो स्थानांतरित तो नहीं करता है। right? God is there everywhere. परमेश्वर सब जगह रहता है He's present everywhere और परमेश्वर सब जगह उपस्थित है। because that is His nature, or that उसका- is His quality, ये परमेश्वर का एक गुण है, उसका व्यक्तित्व का। right? The second thing that we see is that He is all-powerful. और हम देखते हैं वो परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, सामर्थी है। He does not lack or diminish in power. उसके सामर्थ्य में किसी प्रकार की कोई कमी या निर्बलता नहीं है। Suppose we fall sick, हो सकता है हम बीमार में कमजोर हो जाते हैं, गिर जाते हैं, our strength goes down. हमारा शरीर निर्बल हो जाता है। Right. I remember once I had a fracture. I had to put one cast in my leg. और मेरा एक बार मेरा जो पैर जो फ्रैक्चर हो गया था I could not walk for almost 3 weeks. और मैं 3 हफ्ते तक मैं चल नहीं पाया। But after 3 weeks, when I wanted to walk, और जब 3 हफ्ते के बाद मैं चलने के लिए प्रयास किया the leg was very weak. और पैर मेरा बड़ा कमजोर हो गया। I put my leg down and it's shaking. और जब मैं पैर नीचे रखता हूं तो बिल्कुल कपकपाता था। It was strong before. उसके पहले मेरा पैर बड़ा मजबूत था। Now the strength is reduced. किस प्रकार मेरी वो ताकत चली गई पैर की। Right. But not so with God. लेकिन परमेश्वर के साथ ऐसा नहीं है। His power does not diminish. और उसकी सामर्थ कभी निर्बल नहीं होती, कमजोर नहीं होती। Right? He is all powerful. और वो सर्वशक्तिमान है, पूर्ण उसके अंदर सामर्थ पाई जाती है। And similarly, we see that he is all knowing. He knows everything. और इसके साथ साथ हम जानते हैं वो परमेश्वर सब कुछ जानने वाला है। Right. So who are we talking about? We are talking about the Holy Spirit who has these qualities. और हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? जो जिस पवित्र आत्मा के अंदर सारी योग्यता है या गुण पाए जाते हैं, उस Right. पवित्र आत्मा के बारे में। So when we think about the Holy Spirit, जब हम पवित्र आत्मा के बारे में सोचते हैं, we need to understand that the Holy Spirit is God, fully God. और इस बात को हमें समझना है कि वो पूर्ण परमेश्वर है, पिता है। He is omnipresent, he is Ab- all powerful, and he's all knowing. वो सर्वशक्तिमान है, सब जगह रहने वाला, उपस्थित रहता है और सर्वज्ञानी है। Okay. So while we understand this about the Holy Spirit, क्यों हमें पवित्र आत्मा के बारे में इस प्रकार समझना है? we need to understand that the Holy Spirit is a person. इस बात को समझना है कि पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है। Right? Many times कई बार we refer to Holy Spirit as a power. पवित्र आत्मा को हम सामर्थ की बातों को दर्शाते हैं। Yes, he is powerful, हाँ, वो सामर्थी तो है, but he is not impersonal like electricity or any other power. जिस प्रकार हम बिजली में देखते हैं ताकत को देखते हैं, उस प्रकार नहीं। Right? We don't refer to the electricity as a person. और हम जो बिजली को देखते हैं और उसको हम इस प्रकार एक व्यक्ति करके नहीं हम बताते हैं या प्रदर्शित करते हैं। Right? Because it's an impersonal power. Impersonal power. वो एक व्यक्तित्व है, उसमें सामर्थ्य है, व्यक्तित्व का सामर्थ्य है। Is impersonal. Impersonal, not personal. हाँ, उस व्यक्ति में नहीं, लेकिन उस पे ताकत है। Right? But God, the Holy Spirit, पवित्र आत्मा जो सामर्थ है, we should not refer to God, the Holy Spirit, as a it or a non-living thing. और हम उस पवित्र आत्मा को हम पिता में ये नहीं कह सकते कि वो अलग रहता है करके। Because the Holy Spirit is a person. पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है। And that is what we are going to learn in this chapter. और हम इस विषय में हम सीखने पाते हैं। We see that every time the Lord Jesus spoke about the Holy Spirit, हमेशा प्रभु पवित्र आत्मा के बारे में दर्शाता है या बताता है। he says, the Holy Spirit, he will come. पवित्र आत्मा आएगा, He will do this. वो आके करेगा, He will show this. वो तुम्हें बताएगा, He will teach you. वो तुम्हें सिखाएगा, He will remind you. वो तुम्हें स्मरण दिलाएगा।
Sometimes we think of Holy Spirit like one smoke or कई cloud. कई बार हम पवित्र आत्मा को एक धुएं के समान, एक बादल के समान देखते हैं, सोचते हैं, or a feeling in our body. और हमारे जीवन के अंदर उसका अनुभव करते हैं। Right? But the Holy Spirit is a person. लेकिन एक बात याद रखना, पवित्र आत्मा व्यक्ति है। Okay, so let's look at one. I think we have one more minute. Let's look at a few verses. कुछ वचनों को हम देखेंगे। Okay, let's turn to John chapter 14. यूहन्ना 14 अध्याय। Okay, so we're going to be looking at many verses in this course. हम इस विषय में हम बहुत सारे वचनों को तो नहीं देख पाएंगे। Okay, John chapter 14 निकालेंगे यूहन्ना सुसमाचार 14 अध्याय and verses 16 and 17. उसका 16 और 17 पद। Okay, so we will come back after the break and then we will learn this. और हम ब्रेक के बाद आएंगे, फिर हम देखने पाएंगे। Okay, thank you.